Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 2 of Metals and Non-Metals series. Today we are going to talk about chemical properties of metals and non-metals. आज हम बात करेंगे chemical properties of metals and non-metals की. Chemical properties of metals and non-metals play a very important role in entire chemistry because we know that out of 118 elements, most of them are metals and less numbers are non-metals. And हम ये भी जानते हैं कि metals का opposite reactions होता है non-metals में. So first of all, learning objectives for chemical properties of metals and non-metals. Number 1, first of all, recall examples of metals and non-metals. State general reactions of metals and non-metals. Number 3, explain how metals and non-metals react with oxygen, water, acids, bases and solutions of other metal salt. And then most important part is write balanced chemical equation for the reactions of metals and non-metals, means reaction must be balanced. Then compare the reactivity of metals and non-metals in different conditions and judge the certain metals are stored in kerosene or petroleum liquids why. And this is very important for your homework. Design a reaction series chart for metals and non-metals. So before starting metals and non-metals, हम आपको पहले explain करेंगे activity series or reactivity series of metals with the help of mnemonics. हम जनरली इसको लर्न करते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. And this arrangement of metals is in decreasing order of their reactivity, in which potassium is the most reactive metal and gold is the least reactive metal. Potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum metals are always in high activity series. Zinc, iron, tin and lead are in middle activity series of metals, and metals low in activity series are copper, silver, mercury and gold. Then according to mnemonics हम इसको आसानी से कैसे लर्न करें. सो आप इस पोएम से बना सकते हैं. अपना एक पोएम आप बनाएंगे तो आपको बराबर के लिए याद होगा. हमने एक बनाया है और बहुत से मार्केट में हैं जिसको आप आसान समझते हैं, उसके हिसाब से आपको लर्न करना होगा एक्टिविटी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन इसी एक्टिविटी से होगा. जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसका मतलब है कि दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन and they are able to displace hydrogen from acid or base or hydrogen containing compound, and those that lies below the hydrogen are not able to displace hydrogen. इसमें एक मिसकंसेप्शन भी है जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो इसको आप कैसे लर्न करोगे. सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टेड टीच लवली, हैप्पी, क्लेवर, मरकरी सेव, गोल्ड. बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप इसको लर्न कर सकते हैं. देन आपके मन में क्वेश्चन होगा बेसिकली एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत ही क्या है. इसकी ज़रूरत है एक्टिविटी ऑफ मेटल्स को समझने के लिए. सबसे पहले आप समझिए कि एक्टिविटी सीरीज है क्या. ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द सेम रेट, मतलब कोई भी जितने हमारे मेटल हैं उनके रिएक्शन का रेट सेम नहीं होता है. उनका ईज जो है, मतलब रिएक्शन करने का जो स्पीड है, विच मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस देयर रिलेटिव रिएक्टिविटीज. कुछ मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स जल्दी छोड़ते हैं, इट मीन्स उनकी टेंडेंसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की है, और कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, स्लोली छोड़ते हैं,
कुछ हीट करने पर छोड़ते हैं। तो हम एक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात में हमने आपको बताया कि डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी और एक्टिविटी डिक्रीजेज। सम मेटल्स लाइक potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin and lead are lie above the hydrogen. It means they have a more tendency to lose electrons in comparison to hydrogen, and some lies below the hydrogen like copper, mercury, silver and gold. It means they have a less tendency to lose electrons in comparison to hydrogen. अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, इसमें आप ध्यान से इसको समझेंगे कि हमारा कोई भी मेटल है, एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो सबसे ऊपर आपका मेटल है पोटेशियम, देन सोडियम, उसके बाद आपके पास आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम। आप इस ऑर्डर में, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में जाएं, लेकिन आपको एक तरीका है कि एक्टिविटी अगर कम हो रही है तो कैसे लिखा जाए। सपोज़ कीजिए हमने लिख दिया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है तो हर आदमी को मालूम है कि O2, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2, O2 इज़ अ मॉलिक्यूल। अब हमने सबके सामने लिख दिया ऑक्सीजन। अब आप क्लास 9th के हिसाब से आपको मालूम है कि फॉर्मूला में अगर मेटल की वैलेंसी हमको मालूम है और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है तो हम फॉर्मूला ईजिली लिख सकते हैं। तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और ऑक्साइड की वैलेंसी 2, सो फॉर्मूला होगा K2O। अब बैलेंस भी आप करते चलेंगे, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सो इधर हमने आपको 2 लगा दिया, देन पोटेशियम बिकम्स 4, ये बन गया पोटेशियम ऑक्साइड। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इसका हो गया 2NaO2 सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, बैलेंस किया हमने 2 मोल ऑफ calcium oxide, 2 mole of calcium. Same calcium and magnesium have same valency, so same method. Then the valency of aluminum is 3 and oxide is 2, so formula is Al2O3. जब भी ऑड नंबर होता है बेटा तो उसको इवन नंबर से सफिक्स और प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने 2 किया तो ऑक्सीजन 6 हो गया, तो हमने सफिक्स को प्रीफिक्स में कर दिया और प्रीफिक्स को सफिक्स में, और हमारा सोडियम हो गया, सॉरी एल्यूमिनियम हमारा हो गया 4। अब इसके बाद एक और रिएक्शन हम ले रहे हैं जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और इसमें कॉपर की वैलेंसी अगर हम 2 रखते हैं तो कॉपर ऑक्साइड हमारा बन गया। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि सोडियम और पोटेशियम ये जो है बहुत तेज विग्रस रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, और they catches fire when exposed to air. So explosion को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको, पोटेशियम को और सोडियम मेटल को हम बराबर, ऐसे मेटल्स जो बहुत ही एक्टिव हैं इनको हम रखते हैं पेट्रोलियम लिक्विड, लाइक हमने इसको रख दिया केरोसिन में। क्या होता है कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है केरोसिन का, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, सो दे नॉट कैचेज फायर। सेकेंड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के केस में हमने देखा कि दे गेट्स कवर्ड, कोटिंग हो जाएगा इसमें, मेटल ऑक्साइड एक्सपोजर टू एयर, द कोट प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द फर्दर रिएक्शन। सो इन केस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोट, उनके मेटल के ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा जो क्या करेगा, उनको फर्दर रिएक्शन से बचाता है। एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर होगा। यही कारण है कि एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन हाउस होल्ड। मैग्नीशियम आपको एक्टिविटी कर चुके हैं कि मैग्नीशियम बर्न्स विथ अ डेजलिंग लाइट और वाइट लाइट टू फॉर्म ऑक्साइड, और इग्निशन टेम्परेचर जो है इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। जिंक डज नॉट बर्न्स ऑन हीटिंग बट ग्लो करता है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर when burns with oxygen, and copper does not burn on heating because the surface of hot metal is covered with thin black layer of oxide of copper. So this is known as copper 2 oxide.
This is copper 2 oxide is formed. Copper 2 oxide, और इसमें एक बन जाता है ब्लैक फिल्म. ब्लैक फिल्म बन जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा. तो ये तो हो गया ऑक्साइड. अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि मेटल फॉर्म्स टू टाइप ऑफ ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, जितने भी ऑक्साइड्स हमने देखा, इसमें एक लाइन में आपको बताते हैं हम कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक as well as amphoteric. So metal oxides are basic as well as amphoteric. For example, aluminium and zinc. Aluminium oxide Al2O3, zinc oxide ZnO, and oxide of lead are amphoteric in nature. अब आपके मन में एक फिर क्वेश्चन आ गया कि बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में हम कैसे दोनों को अलग कर पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो मेटल ऑक्साइड जो बेसिक ऑक्साइड है, अब आप इसमें देखोगे कि सोडियम ऑक्साइड सपोज आपने ले लिया NaO, तो सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है. अगर आप इसको बेसिक ऑक्साइड को एसिड्स में डालते हैं तो यह बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस H2O. हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया. तो बेसिक ऑक्साइड दैट इज सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव सॉल्ट प्लस वाटर. But amphoteric oxide reacts with acid as well as base. This is very, very important. Amphoteric in nature means amphoteric oxides reacts with acid as well as base. इसको समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं. इस एग्जाम्पल को आप बहुत प्यार से देखोगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. जैसे हमारे पास है Al2O3, सॉलिड स्टेट में है. इसको हमने ट्रीट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से एक्वस स्टेट में, और इसको सॉलिड ले लिया. यहाँ बन गया सॉल्ट AlCl3 एक्वस प्लस हाइड्रोजन combines with oxygen gives water, that is liquid. तो यहाँ बन गया सॉल्ट प्लस वाटर. अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, 6HCl and 2AlCl3 because एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al2O3 है, and then 3 वाटर. तो यहाँ पर यह एसिड है बेटा. तो अगर हम किसी भी ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ इसका नेचर क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया. यहाँ अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करेगा तो ये बेसिक ऑक्साइड के प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा. अब यहाँ देखिए, फिर हमने लिया क्या, Al2O3 सॉलिड, और इसको हमने कॉस्टिक सोडा से ट्रीट किया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो वाटर सोल्यूबल बेस है, और इसको हम अल्कली भी कहते हैं. जब इससे इसने रिएक्ट किया तो फिर बना सॉल्ट, and that is very important salt, very important for examination. एल्यूमिनेट बनता है और यहाँ वाटर लिक्विड निकलता है, H2O लिक्विड, और यह एक्वस स्टेट में यह बन जाता है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट. हम इसका नाम लिख देते हैं आपके पास, सोडियम एल्यूमिनेट. आपने देखा क्या कि यहाँ पर यह बेस से रिएक्ट कर रहा है. इट मीन्स यह क्या हो गया, एसिडिक हो गया, एसिडिक ऑक्साइड हो गया. और इसके ऊपर वाले रिएक्शन में यह बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है. तो हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस. सिमिलरली आप जब जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा HCl से, और जब NaOH से रिएक्ट करोगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा. यहाँ पर
NaAlO2 होता है बेटा एल्यूमिनेट में फॉर्मूला, NaAlO2 फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और एल्यूमिनेट रेडिकल है, इसकी भी वैलेंसी होती है -1। सो फॉर्मूला हो जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सोडियम एल्यूमिनेट में एनायंस का फॉर्मूला AlO2 माइनस है, AlO2 माइनस, और केटायन है Na+। सो NaAlO2 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। सो हमने इसमें देखा कि हाउ मेटल रिएक्ट। अब आपके मन में होगा सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से एट हाई टेम्परेचर बिकॉज दे आर इनर्ट मेटल। अब आप इजीली बता सकते हो कि एक्टिविटी सीरीज में हम गए, तो हम एक्टिविटी सीरीज में जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो मोस्ट एक्टिव मेटल है उसमें भी रेट जो है रिएक्शन का वो स्लो हो गया। सोडियम और पोटेशियम विग्रस रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम में ऑक्साइड बनने लगा, एल्यूमिनियम में ऑक्साइड बनने लगा, आयरन में ऑक्साइड बनने लगा, कॉपर में ऑक्साइड लेयर है, हीट करने पर एक्टिविटी हो रही है। सिल्वर और गोल्ड में एक्टिविटी रिएक्ट ही नहीं हो रहा है हमारा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सेकेंड टॉपिक हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। हमने हेडिंग लिखा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, दैट इज H2O। अब हम इसमें आपको मेटल प्लस वाटर, सबको मालूम है कि मेटल, कोई भी मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बहुत आसान है अगर आप क्लियरली इसको समझेंगे। और मेटल ऑक्साइड को अगर हमने वाटर डाला प्लस वाटर, तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज है, ऑक्साइड जो है वह मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो फाइनली आपने देखा क्या कि मेटल कन्वर्टेड इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सो ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। फिर यह किस पर डिपेंड करेगा? एक्टिविटी सीरीज पर। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम react vigorously at normal temperature, but calcium reacts with cold water less violently. The heat evolved is not sufficient for hydrogen gas to catch fire. So, sodium and potassium when added in water, sodium hydroxide, hydrogen gas plus heat is released, and when heat is released means reaction is exothermic and hydrogen catches fire. So generally बेटा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम कहते हैं कि सोडियम कैचेज फायर। सोडियम कभी कैच नहीं करता है फायर। जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी रिलीज होगी। इस हीट एनर्जी जो रिलीज होगी वह एक्जोथर्मिक रिएक्शन में उस एनर्जी से हाइड्रोजन जो है वह कैच कर लेगा फायर। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि हमने लिया सोडियम Na और इस पर हमने डाला H2O लिक्विड और हमारा प्रोडक्ट हो गया NaOH प्लस हाइड्रोजन और प्लस हीट, हमने लिख दिया हीट यहाँ पर। तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2 प्लस हीट। हमारा 2 मोल ऑफ सोडियम combines with 2 मोल ऑफ वाटर gives 2 मोल ऑफ NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। और यह जो हाइड्रोजन है यह क्या कर लेगा? कैच
फायर। अब इस कंसेप्ट को आप क्लियर रखिएगा। सिमिलरली सेम रिएक्शन होगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2 मोल ऑफ पोटेशियम 2 मोल ऑफ वाटर गिव्स 2 KOH प्लस H2 प्लस हीट। अब यह जो है बेटा, यह क्या है, soluble in water. Sodium hydroxide soluble in water and potassium hydroxide is also soluble in water. So यह water soluble base को हम क्या कहते हैं, अल्कली। So caustic soda and caustic potash ये अल्कली हो गया। अब कैल्शियम के बारे में आप देखोगे, कैल्शियम सॉलिड को जब आप डालोगे इसके ऊपर वाटर, तो यह भी रिएक्ट करेगा, लेकिन विग्रस होगा, कम होगा, और यह कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और यह प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इसका नाम जानते हैं, एक्वस स्लैक लाइम प्लस हाइड्रोजन गैस। और इस केस में आप देखोगे क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम जो होता है, हम लिख देते हैं लैंग्वेज में, कैल्शियम स्टार्ट्स floating. Calcium start floating on water because the bubbles of hydrogen gas that are formed stick to the surface of calcium and help to float। क्वेश्चन पक्का है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड में कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये क्यों फ्लोट करने लगते हैं सरफेस के ऊपर। सो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर, कारण क्या है, बबल्स जो हाइड्रोजन गैस का होता है उसके साथ ही चिपक के और उसके ऊपर फ्लोट करता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये आपको मालूम है कि इसको हम स्लैक लाइम कहते हैं, यह पावरफुल बेस होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ हॉट वाटर। अब यहाँ पर देखो, कैल्शियम ने किससे रिएक्ट किया है, कोल्ड वाटर से। अब मैग्नीशियम सॉलिड को जब हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो यह बनता है MgOH होल ट्वाइस, अब प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हो, 2 मोल ऑफ वाटर। आपने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पर हॉट वाटर चाहिए और सोडियम के केस में कोल्ड वाटर, यानी कि मैग्नीशियम कैल्शियम से स्लाइटली लेस रिएक्टिव है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया यहाँ। मैग्नीशियम को अगर हम वाटर से ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, स्टीम से ट्रीट कर दोगे तो ऑक्साइड बन जाएगा। सेम रिएक्शन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैग्नीशियम सॉलिड को अगर हमने स्टीम से ट्रीट कर दिया तो यहाँ पर प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 बनेगा, यह जो है स्टीम है। इस कंफ्यूजन से आपको हटना होगा। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों को हम बेस कहते हैं। सो मैग्नीशियम रिएक्ट आफ्टर अ मिनट एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। सेम आंसर आप दे सकते हो जैसे हमने मैग्नीशियम में लिखा है। अब देखिए इसके बाद एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, दे रिएक्ट विथ सुपर हीटेड वाटर, स्टीम, एंड दे फॉर्म ऑक्साइड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको एक बात समझना है, किसी भी रिएक्शन को रटने से आप बचेंगे। और जो हमने यह वीडियो बनाया है एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत कम समय में रिएक्शंस को कैसे लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बाय नोइंग सिंपली वैलेंसी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अगर आप भूल गए हो तो एक बार उसको रिवाइज कर लो,
क्योंकि रटने से बेटर है अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करना। तो हमने आपको बताया कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, हमने वाटर लिख दिया। वाटर हम लिख रहे हैं गैसियस क्योंकि हमारा सुपर हीटेड वाटर है, और मेटल्स हमारे सॉलिड हैं। हमने 3 कंडीशन लिया आपके सामने, क्योंकि इस तीनों कंडीशन में कोल्ड वाटर हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जब भी रिएक्ट करेंगे स्टीम से रिएक्ट करेंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि दे रिएक्ट ओनली विथ स्टीम। तो जिंक जो है वह सिंपली बनाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस। और एल्यूमिनियम आपको मालूम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर भी आपको बताया है कि यह एम्फोटेरिक होगा। 3 मोल ऑफ वाटर इज नीडेड। जिंक ऑक्साइड के बाद आयरन में आपने देखा यह एक अलग रिएक्शन है जो NCERT क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का पहला रिएक्शन है। Fe3O4 बन जाता है और 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। अब इसके नेमिंग में यह जो ऑक्साइड है हमारा बेटा, इसका स्पेशल नेम है आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसको हम स्टॉक नोटेशन कहते हैं। या Fe3O4 जो है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब है कि यह FeO प्लस Fe2O3 इस दो के कॉम्बिनेशन से बना है। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड को हम कहते हैं आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड को हम कहते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। तो यह ऑक्साइड जो है मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो कॉमन नेम इसका हम कहते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। अब इसके बाद आप देखो कि जो लेड है हमारा हाइड्रोजन के जस्ट अबव है, लेकिन लिस्ट रिएक्टिव मेटल में आता है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। सो आपने यहां देखा क्या कि हमने मेटल के 2 रिएक्शंस आपको केवल बताए हैं। एक हमने रिएक्शन बताया है मेटल विथ ऑक्सीजन और दूसरा बताया है हमने मेटल विथ वाटर। अब थर्ड रिएक्शन हम इसका देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड्स, थर्ड में हमारा आ गया रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। आपको मालूम है कि 2 तरह के एसिड हैं, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। अब आप इसमें देखो बहुत सिंपल वे में कैसे लर्न करोगे। तो आप पहले इसको वर्ड इक्वेशन बना लो लर्न करने के लिए कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। तो जो भी एसिड होगा उसका क्रॉसपॉन्डिंग मेटल के सॉल्ट बन जाएंगे। तो यह मेटल सॉल्ट हो गया। और जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वह उनको रिमूव कर देगा। यहाँ बन गया मेटल सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप देखो इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल आप ले लो। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम, कैल्शियम को हमने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से Ca प्लस HCl, और इसमें यह रिएक्शन जो है काफ़ी विग्रस होगा, तेजी से होगा। मतलब आपको यह रिएक्शन वायलेंट रिएक्शन होगा और बन जाएगा यहाँ कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो इजीली। मैग्नीशियम के साथ यह होगा रिएक्शन सेम मैनर में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम reacts with hydrochloric acid and magnesium chloride plus hydrogen gas is formed। अब इसके बाद आप देखोगे कि कंसेप्ट जो हमारा है कि सारे मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। अब जनरल में हमने आपको लिखना नहीं है, आप खुद करोगे। कैसे? अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, जिंक है तो जिंक क्लोराइड बनेगा। सो एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये आपका होमवर्क होगा। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको भी आप करेंगे होमवर्क में। इसके बाद आयरन प्लस HCl, Fe प्लस HCl, सेम आयरन 2 क्लोराइड बन जाएगा।
और कॉपर के साथ HCl का रिएक्शन अगर करते हैं, कॉपर प्लस HCl, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि नो रिएक्शन। अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि कॉपर जो है एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है फास्ट रिएक्शन होगा, जिंक के साथ भी फास्ट होगा, आयरन के साथ फास्ट होगा, लेकिन कॉपर के साथ रिएक्शन होगा ही नहीं। अब मेन हम लोगों का सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है उसको समझिए। हमने कहा कि मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड से, और नाइट्रिक एसिड से मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो है वो केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस रिएक्शन को समझना है आपको, और एक क्वेश्चन फिक्स है कि हमारा अगर नाइट्रिक एसिड है HNO3, सो नाइट्रिक एसिड हमारा होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बहुत आराम से आप इसको समझिए, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होगा कि मेटल तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, और मेटल के रिएक्ट करने के बाद जब वो रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि अब मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। हमने लिया कैल्शियम प्लस HNO3, अब यहाँ पर ही बन गया CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा है, यह क्या करेगा कि हाइड्रोजन जो हमारा बना है, हाइड्रोजन को ही कन्वर्ट कर देगा किस में, वाटर में। सो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में, और नाइट्रिक एसिड जो है यह इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। यह किस में चला जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में चला जाएगा। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। तो हमने क्या बताया कि रिएक्ट नहीं करेगा डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज a strong oxidizing agent. But magnesium and manganese react with very dilute acids. So magnesium plus nitric acid, that is HNO3, react with magnesium nitric acid and gives HNO3, magnesium nitrate plus water or hydrogen gas. So please balance the equation. Similarly, manganese react with HNO3 aqueous and gives MnNO3 whole twice plus hydrogen gas. So in both the cases hydrogen gas are revolved. Then H2 gaseous. Again balance this equation. So misconceptions आपका दूर हुआ। So अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, वाटर and other compounds. So thanks for watching.